Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning. As we have completed in our previous class, we have completed lesson number 6, understanding our criminal justice system, in which we have clearly understood the whole lesson that revolves around the criminal justice system, how our criminal justice system works in our country. And for that, we have understood this whole criminal justice system and on the basis of one story of Mrs. and Mr. Shinde and those who had pointed out their mage Shanti Hambram for stealing the gold chain, and related to that only who all persons were involved in giving the justice to Shanti, and that all process we have understood nicely in the previous lesson, lesson number 6. Now comes lesson number 7, that is understanding marginalization. Now, what does this lesson means? Marginalization. What we are going to read in this lesson, we are going to read about marginalization. Now, what was the first? We will understand the meaning of marginalization. Uh, Marginalization is means when one community or one person feels excluded. Excluded means अपने आप को वो कुछ अलग रखते हैं, अलग समझते हैं from the rest of the part of the society या from the group. अपने आप को कोई ग्रुप से या सोसाइटी से अपने आप को वो अलग अलग महसूस करते हैं, और deny to access for something, I mean some resources and all, या उनको किसी चीज़ के लिए मीन्स यूज़ करने के लिए या उनको काम में लेने के लिए किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, तो वो होता है सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होता है? वो लोग होते हैं या वो कम्युनिटी होती है जो अपने आप को एक तरीके से रेस्ट ऑफ द सोसाइटी या रेस्ट ऑफ द ग्रुप से अपने आप को एक अलग महसूस करते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेज डिफरेंट हो, पूरे सोसाइटी की पूरे ग्रुप की लैंग्वेज एक हो, और उस ग्रुप कम्युनिटी की या उस पर्टिकुलर मीन्स पर्सन की लैंग्वेज डिफरेंट हो और बाकी पूरे ग्रुप के पर्सन्स की लैंग्वेज एक हो, तो वो अपने आप को डेफिनेटली अलग समझेगा उस ग्रुप से या उस सोसाइटी से। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे वो अपने आप को रेस्ट ऑफ द मींस ग्रुप से या सोसाइटी से अपने आप को वो एक तरीके से अलग अलग सा महसूस करता है। इन द क्लास ऑल्सो माइट बी you can feel that a group of intelligent students are there, and when one means we can say not so much intelligent and average student gets into the group, he or she can feel aloof, एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा उनसे अलग महसूस करेगी, अरे ये तो बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा कम हूँ या थोड़ी सी कम हूँ पढ़ाई में। या आप देखते हैं कि कोई शादी या कुछ कहीं पर कुछ रिच पर्सन्स आ जाते हैं, कोई हाई रिस्पेक्टेबल पीपल आ जाते हैं, और कोई कॉमन मैन जाएगा, तो वो अपने आप को बहुत बहुत ही अलग महसूस करेगा उस होल ग्रुप से। तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनलाइजेशन। अब सोशली मार्जिनलाइज क्या होता है, ये तो मैंने आपको वर्ड मार्जिनलाइजेशन एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस टाइप से जो कंडीशन होती है उसे हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। नाउ हु आर सोशली मार्जिनलाइज्ड in the society and all, we are going to read about these marginalized group of the society and about these people in detail in this lesson. Now, what does it mean to be socially marginalized? Of socially marginalized, the question arises, how we have understood well what does the word marginalization means. Now the question arises, what does it mean to be socially marginalized? अब socially सामाजिक तौर पर सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो वी आर सोशल बींग्स, तो सोसाइटी के रूप में हम कैसे मार्जिनलाइज हैं, वी विल अंडरस्टैंड।
Now, to be marginalized is to force to occupy the sites or fringes and thus not to be at the center of things. अब marginalize का मतलब होता है कि हमें फोर्स किया जाता है कि हम एक तरीके से साइड में रहें, पूरे ग्रुप में इन्वॉल्व सेंटर पोजीशन में ना रहें, बल्कि हम साइड्स और फ्रिंग्स, फ्रिंग्स मीन्स बाउंड्रीज में साइड में रहें और पूरे ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो हमारी. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. Now, in the classroom and playground, this type of feeling may arose somewhere at some point of time. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or film is different, if your asset marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. Now, these are the examples given कि अगर आपको क्लास में म्यूजिक या फिल्म दूसरों को कोई अलग तरीके के एंटरटेनमेंट म्यूजिक पसंद है, किसी को कोई सैड म्यूजिक या मींस फिल्म्स पसंद है, तो इस टाइप से आपका अगर टेस्ट डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द आपके मींस पीयर ग्रुप से, आपके ही ओन फ्रेंड्स के ग्रुप से, देन यू माइट बी नॉट इन योर पीयर्स, मींस आप उस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगी. उनकी जो भी बातचीत है, उनकी बातचीत में आप अपने आप को बहुत अलग महसूस करेंगी, क्योंकि आपका टेस्ट डिफरेंट है, आप अलग, आपकी थिंकिंग अलग है. इफ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट दैट मेनी ऑफ योर क्लासमेट लाइक. अब स्पोर्ट्स भी देखते हैं हम कि दूसरे सब हॉकी पसंद है, सब पूरे ग्रुप को, आपके फ्रेंड सर्कल को स्पोर्ट्स में हॉकी पसंद है और आपको बैडमिंटन पसंद है, तो दैट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड a type of separateness from the rest of the your friends group. तो आप एक तरीके से अपना आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, वो अपना हॉकी के बारे में बात करेंगे आपस में, और आपको ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा नॉलेज है आपको इसके बैडमिंटन के बारे में, तो माइट बी यू विल नॉट बी एबल टू means conversation in means take part in their conversation, and you might feel aloof, उनको में थोड़ा सा अलग अलग महसूस करोगे आप अपने आप को. So these are the different conditions, situations in which in the class you can feel separate from the rest of the group or your friends. So often you end up feeling that you are not with it, as if you say, feel and think and how you act are quite right or acceptable to others. So आप एक तरीके से एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि आप रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ में नहीं हो, और आप जो बोल रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है उस ग्रुप में, इसीलिए आप अलग अपने आप को महसूस करोगी. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर फर्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट coming to next paragraph. As in classroom, in the social environment too, group of people or communities may have have the experience of being excluded. Now, एज इन ग्रुप, जैसे कि हमने क्लासरूम के ग्रुप में देखा कि कैसे वन स्टूडेंट फील्स अलूफ अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड से, अपने ग्रुप से अलग दिखता है. सेम वही सिचुएशन होती है जब सोशल एनवायरनमेंट में, दैट मीन्स इन द सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी, वो भी इसी टाइप की फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो इन सोशल एनवायरनमेंट मीन्स इन सोसाइटी, two group of people or communities may have experience of being excluded. अपने आप को exclude समझ सकते हैं, अलग समझ सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से kept out. Exclude means उस ग्रुप से kept out, अलग रख सकते हैं. Their marginalization can be because they speak a different language. अब उनका marginalization, उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनको अलग रखा गया है rest of the society से, क्योंकि because they can speak a different language, उनको एक तरीके से
वो दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, जो सोसाइटी में लैंग्वेज यूज हो रही है उससे अलग लैंग्वेज है उनकी, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स फॉलो करते हैं, या बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, और ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी। जो मेजोरिटी कम्युनिटी मीन्स मोस्ट, जो कम्युनिटी मेंबर्स है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, और आपका रिलीजन सेपरेट है, दूसरा है। तो ये भी आपकी एक तरीके से सिचुएशन हो सकती है जब आप अपने आप को उस ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे और अपने आप को आप अलग समझोगे। They may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status, and viewed as being less human than others. Now, one more situation will be there for the low class people. That means the people who are very poor and they are having low status in the society. Society में उनके status क्या है? Low है. तो वो भी अदर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से अपने आप को थोड़ा सा लो महसूस करते हैं, अलग महसूस करेंगे, एंड दे आर ट्रीटेड एज इनह्यूमन, मीन्स एक तरीके से उनका जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो हाई क्लास सोसाइटी है, वो भी उनको एक तरीके से अलग अलग ही उनको सेपरेट समझेगी, अपने आप में इन्वॉल्व नहीं समझेगी। Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear, और कभी कभी ये marginalized group कभी कभी इनको कैसे देखते हैं, एक तरीके से बिल्कुल ही जैसे कोई बाहर से आए हैं ये, या बिल्कुल ही अलग है, और एक तरीके से इनके ऊपर वो फियर रहता है दूसरे पार्ट ऑफ द सोसाइटीज को, ये अलग ही ग्रुप दिखता है तो ये फियर रहता है इन लोगों को। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, इनको एक तरीके से किस नजर से देखते हैं, सस्पेक्ट की नज़र से, कि ये ज़रूर इन्होंने, मतलब वो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनकी थिंकिंग अलग है, इनका रिलीजन अलग है, तो ये एक तरीके से सेपरेट हैं। तो इस टाइप से व्यू पॉइंट रखते हैं दूसरे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। Now this sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities in their inability to assert their rights. Now in this sense of difference, इस डिफरेंसेस जो इस टाइप से होते हैं, इससे क्या होता है, ये कम्युनिटीज इनको एक्सक्लूड कर देती है। जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी है, जो ग्रुप मेजोरिटी ग्रुप है, वो इन लोगों को अपने ग्रुप से अलग रखता है, और इनको किसी तरह का कोई जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में या कम्युनिटी में, जो भी रिसोर्सेज हैं, कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, वो इनको प्रॉपर वे में दे आर नॉट एबल टू हैव द प्रॉपर एक्सेस, उन दे आर नॉट विद इन द रीच ऑफ दिस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के वो रीच में नहीं आते हैं, उनसे वो मीन्स उनको वो डिनाई कर दिया जाता है वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर considered as marginalized group. Now they experience a sense of disadvantage and powerlessness. Vice versa, more powerful and dominant section of the society who own land are wealthy, better educated and politically powerful. अब ये जो है एक तरीके से इनको सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, क्योंकि इनको दूसरे सोसाइटी से अलग रखा जाता है, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो बेनिफिट्स, जो राइट्स उस ग्रुप ऑफ पीपल में अवेलेबल है, वो इनको नहीं वो एक्सपीरियंस करते हैं। किसके वाइस वर्सा मीन्स किसके कंपेयर में, जो कि बेटर एजुकेटेड है, पॉलिटिकल पावरफुल है, और उनके पास उनकी खुद की जमीन जायदाद है। तो ये लोग में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। Such Thus marginalization is seldom experienced in one sphere. Economic, social, cultural, and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. और इस तरीके से many factors are responsible, like economic, social, cultural, and political factors. They all together are responsible to make that particular group और अ कम्युनिटी फील मार्जिनलाइज्ड। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को अपने आप को मार्जिनलाइज, अपने आप को एक तरीके से ग्रुप से एक्सक्लूडेड मानता है। Now, in this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today.
Now in this lesson particularly, you are going to read about mainly two communities which are considered to be socially marginalized, जिसको socially marginalized society से exclude रखा जाता है। उनको society में रहते हैं वो जरूर, मगर एक तरीके से वो at the side, कुछ involvement नहीं है, no access to any of the resources which are there in the society. Now we will continue with this lesson in our next class, whether video uploading is there or live class is there. Till then, go through these paragraphs again, and if you are having any doubt, you can ask me, and read this story also yourself. Try to read the story, and then we will continue with the same story in our next class, so that you better understand in good way again, अच्छी तरह और समझ में आ जाए आपको। तो ये पहले से ही स्टोरी पढ़कर रखना आप। Am I clear? So I end up here only today. Till then, read the lesson from where we have till where we have done, and read the story also, the coming story. And then take care. Thank you.